Hello students, how are you? Fine. Myself Gunjan Singh and you are watching Science Classes with Gunjan Singh. Today I am going to teach you Standard 7th lesson number NCERT board lesson number first nutrition in plant. This is very important and interesting lesson but simple. Before starting this lesson, I want to inform you that I've already covered class 6 NCERT till PT1 exam, and now it's your turn. Okay, let's start nutrition in plant. आपको तो मालूम ही है ना, you have already learned in class 6 we all have nutrients. We take nutrients from plants. These are carbohydrate, protein, fat, minerals. Besides these, water and roughage are also we take as a nutrients. पर आपने कभी सोचा है कि हम human and all organism depend on directly or indirectly plants. बट वो प्लांट्स कहाँ से खाना लाते हैं, वो कहाँ से भोजन बनाते हैं, वो कैसे फूड प्रिपेयर करते हैं, उसी को डिस्कस किया है इन दिस लेसन में, न्यूट्रिशन इन प्लांट. ओके, देखिए यालिका, यू आल्सो लर्न दैट carbohydrate, protein, fat, vitamins and minerals are component of food. These components of food are called nutrients and are necessary for our body. All living organisms require food or directly or indirectly that depend upon plant. Bujo का यहाँ पे एक डाउट है. Bujo wants to know how plants prepare their own food. तो वो फूड कैसे बनाते हैं, कहाँ उनकी फूड फैक्ट्री होती है, वही आगे चल के दिखा रहा है इसमें. मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट. नेक्स्ट सब टॉपिक इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट. Plants are the only organism that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals. Plant एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और सॉइल से मिनरल्स और वाटर लेता है और वो अपना फूड खुद बनाता है. वो कहाँ बनाता है वो बता रहा है. ओके, ये न्यूट्रिएंट्स हम लोग लेते क्यों है? द न्यूट्रिएंट्स enable living organisms to build their bodies, to grow, to repair damaged part of their bodies and provide the energy to carry out life process. हमने अपनी सारी वाइटल एक्टिविटी को करने के लिए न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए. ओके, ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दो प्रकार के मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स. ऑटोट्रॉप्स क्या है? जस्ट अ मिनट. ये प्लांट्स क्या होते हैं? ऑल प्लांट्स आर, where is highlighted, just a minute. Okay, autotrophs, this is mode of nutrition, and this is another mode of nutrition is heterotrophs. Autotrophs क्या है? The mode of nutrition in which organism make food themselves. वो अपना खाना जब खुद बनाते हैं तो वो autotrophs होते हैं. All plants are autotrophs. Auto means propose, self. Sorry, auto means self and propose means nourishment. वो अपना जब अपने नरिशमेंट के लिए अपना सारा न्यूट्रिशन खुद वो लेके बनाते हैं अपना फूड, तो उसे ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं. हेटेरोट्रॉप्स मींस, हेटेरो मींस अदर, जब वो डिपेंड अपॉन अदर प्लांट और एनिमल फॉर सर्वाइवल. these animals are plants are known as heterotrophs. Animals and most other organisms take in food prepared by plants.
they are called heterotrophs. तो आपने देखा mode of nutrition, there are two types of mode of nutrition, autotrophs and heterotrophs. आगे चल के heterotrophs में भी कई डिवीजन है, उसमें कई there are so many variations in heterotrophs. These are symbiosis, insectivorous plant. Okay, यहाँ पे पहली का एक डाउट है, पहली wants to know why our body cannot make food from carbon dioxide, water and minerals like plant do. पहली बोलती हैं कि जैसे प्लांट्स अपना मिनरल्स, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड लेके फूड बना सकते हैं, तो हम क्यों नहीं बना सकते हैं? एक्चुअली होता क्या है कि प्लांट में जो लीव्स है और उसके अंदर जो क्लोरोफिल है वो हमारे में नहीं है, इस वजह से हम अपना भोजन, अपना फूड खुद नहीं तैयार कर सकते, हम प्लांट पे डिपेंड है. Here there are so many questions. First question is, where the food factory of plants are located? The answer of this question is under the topic 1.2 photosynthesis, food making processes in plant. यहाँ पे 4 types of questions पूछे गए हैं और सभी questions के आंसर सब टॉपिक के अंतर्गत दिया गया है. सब अंडर द हेडिंग सब टॉपिक, डिफरेंट रीजन, डिफरेंट सब टॉपिक. आप ध्यान से सुनिए, स्टे विद मी टिल लास्ट, टिल एंड. ओके, फोटोसिंथेसिस क्या है? ओके, बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ही इजी है पर कंसेप्चुअल है, आपको ध्यान लगाइए. मैं 2 मिनट में ही आपको समझाती हूँ पर ध्यान देना पड़ेगा आपको. देखिए फोटोसिंथेसिस क्या है. लीव्स आर, क्वेश्चन क्या था, वेयर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड. फूड फैक्ट्री कहाँ होती है? मैंने बोला ना आपको, लीव्स ही फूड फैक्ट्री है. लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स, देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीफ. तो हम जब फूड लीव्स को बनाने हैं तो सारे मिनरल्स, कार्बन डाइऑक्साइड जो भी है, जितनी चीजें हैं सब लीव्स के पास पहुंचेगी, तभी ना लीव्स बना पाएगा अपना खाना खुद. तो वो कैसे पहुंचती हैं वो सब इसमें दिखा रहा है. Water and minerals present in the soil, as you know, are absorbed by the roots and transported to the leaves. कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं लीव्स में, आपको बाद में चल के पता चलेगा. फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम होता है. फ्लोएम से जब ये खाना, जब ये फूड तैयार हो जाता है तो फ्लोएम के थ्रू सब जगह, सब पार्ट्स में जाते हैं, और जाइलम के थ्रू ये मिनरल्स और वाटर ऊपर चढ़ते हैं, लीव्स के पास पहुंचते हैं ताकि वो फूड तैयार कर सके. ओके, जस्ट अ मिनट. हाँ, कहाँ पे थे हम लोग? कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ. आपके लीफ में कुछ पोर्स होते हैं जिनको स्टोमेटा बोलते हैं, उसका भी स्ट्रक्चर दिखाया है इसमें. उस वहीं पे होता है आपका फोटोसिंथेसिस. These pores are surrounded by guard cells. Such pores are called stomata. इसको क्या बोलते हैं? स्टोमेटा. This is okay. Bujo का पे क्वेश्चन है. Bujo wants to know why, sorry, how water and minerals absorbed by root reach the leaves. कैसे पहुंचता है इनमें, मैं आपको शो करके बताती हूँ. आपने कभी, ये एक प्रोसेस है फिजिक्स में, आप आगे चल के पढ़ोगे, कैपिलरी एक्शन होता है. उसमें क्या होता है, फोर्स करते हैं पानी को ऊपर जाने के लिए, मिनरल्स को ऊपर जाने के लिए. कैसे होता है, जैसे आप कभी बकेट में टॉवल डाल दो, एक पोर्शन डालो तो आप देखोगे आधे घंटे 1 घंटे बाद टॉवल का दूसरा पोर्शन भी भीग जाता है. वो भी कैपिलरी एक्शन से ही वो पानी ऊपर पहुंचता है.
एक और अनदर एग्जांपल इज विक्स। आपने देखा होगा ना लैटर्न वगैरह में, या भगवान जी का जब दिया जलाते हो आप, तो आप जो विक्स डालते हो उसका एक टिप उसमें आग में डूबा रहता है, डिप रहता है, वो धीरे धीरे करके अनदर पोर्शन पे वो पहुंच जाता है। दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ कैपिलरी रिएक्शन। सेम एज water and minerals are transported to the lips by the vessels by this process, capillary action, which run like pipe throughout the root. They form a continuous path or passages for the nutrients to reach the leaf. Okay. अब आप यहाँ पे ये सेल का स्ट्रक्चर दिया है। जब मैं स्टोमेटा आपको डिस्कस करूंगी तो ये सेल के बारे में आपको बताते हैं। ओके। और ये जो इनका पानी और मिनरल्स का जाने का है वो कंटिन्यूअस होता है। और पहली वांट्स टू, इसमें पहली ने क्वेश्चन पूछा है, पहली वांट्स टू नो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट द लीव्स that they can synthesize food but other parts of the plant do not. लिप्स में ऐसा क्या खास बात होती है कि वही फूड फैक्ट्री उसको बोलते हैं और पार्ट्स क्यों नहीं करते हैं, वही बता रहा है इसमें। इसका आंसर खुद यहाँ लिखा हुआ है। द लिप्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। हाँ, सभी लिप्स में ग्रीन पिगमेंट होते हैं जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं। जस्ट अ मिनट, आई हाईलाइट chlorophyll. Okay. It helps leaves to capture the energy of the sunlight. यही क्या करता है, ये सनलाइट की एनर्जी को यही कैप्चर करता है, क्लोरोफिल। अगर क्लोरोफिल ना हो या सनलाइट में उस प्लांट को ना रखें तो वो क्लोरोफिल कैप्चर नहीं कर पाएगा, जिससे वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। इसका भी आज आगे चल के एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। This energy is used to synthesize, यानी prepare food from carbon dioxide and water. Since the synthesis of food occur in the presence of sunlight, it is called photosynthesis. क्योंकि सनलाइट में ही ये प्रोसेस होता है, इसलिए इसका नाम फोटोसिंथेसिस है। क्योंकि फोटो मीन्स लाइट, फोटो मीन्स लाइट, फोटो मीन्स just a minute, photo means light and synthesis means to combine. Okay, this is a unique process on the earth. पूरी दुनिया में ये एक यूनिक प्रोसेस है कि प्लांट ही बस है जो अपना भोजन, अपना खाना खुद बनाता है, और सब तो डिपेंड होते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट पे। ओके, सन इज द Sun is the ultimate source of energy for all living organism. तो ऑर्गेनिज्म के लिए सन ही एक अल्टीमेट सोर्स है और बहुत ही अच्छा सोर्स है जिससे हम एनर्जी पाते हैं, रोशनी पाते हैं। यहाँ फिर क्वेश्चन है, कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्या आपने कभी इमेजिन किया है कि फोटोसिंथेसिस के बिना हमारी जिंदगी होगी? नहीं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एटमॉस्फेयर से और बदले में हमें ऑक्सीजन देते हैं, और बिना ऑक्सीजन के तो हम जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते। उसके अलावा फूड पे भी हम डिपेंड हैं प्लांट की वजह से। ओके, the survival of almost all living organisms directly or indirectly depends upon the food made by the plants. Besides oxygen, which is essential for the survival of living organism, is produced during photosynthesis. इसके अलावा ऑक्सीजन भी मिलता है, फूड तो मिलता ही है।
ये कैसे होता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड रहता है जो हम एटमॉस्फेयर से लेते हैं, वाटर लेते हैं जो हम डालते रहते हैं गमले में पानी, या जमीन के अंदर जो पानी है वो एब्जॉर्ब करता है, और सनलाइट के प्रेजेंस में, और क्लोरोफिल जो उसके लीव्स में है, और बनता क्या है? कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। जस्ट मिनट, आई विल शो यू a slide. Okay, we have already discussed plant mode of nutrition. क्या क्या था? ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स। हेटरोट्रॉप्स में मैंने बोला ना, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं, सेप्रोट्रॉप्स हैं, सिम्बियोसिस है, ये सब हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। और वो जो रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस में, यही रिएक्शन है। कार्बन डाइऑक्साइड फार्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2। इसमें क्या होते हैं? इधर जो लिखा रहता है वो क्या रहता है? मॉलिक्यूल्स। तो 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के ज्वाइन हुए। ये क्या फार्मूला है? वाटर का फार्मूला है H2O। 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O से ज्वाइन किए तो क्या बना? प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल भी था जिसने कैप्चर किया था लाइट को। ये फोटोसिंथेसिस शो कर रहा है। बना क्या? C6H12O6। दिस इज द फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? इट इज अ काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्लस 6O2, और ऑक्सीजन रिलीज हुआ। इसके कितने? 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के रिलीज हुए। तो प्रोसेस देखा, आपको क्लियर हुआ? ओके सॉरी, एक मिनट, मुझे को दिखाती हूँ। हाँ, अभी मैंने बोला ना, प्लांट फोटोसिंथेसिस में क्या करता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन निकालता है, और ये क्या होता है? डे टाइम में होता है, सनलाइट के इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जस्ट अपोजिट रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन में क्या होता है? हम लोग इन्होंने जो ऑक्सीजन निकाला प्लांट्स ने, उसको लिया और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड दिया। तो इसको बैलेंस करता है ये फोटोसिंथेसिस। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं रहता तो वो क्वेश्चन था ना कि हम लोग, हमारी लाइफ सरवाइव कर पाएंगे क्या? हम लोग लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकते। और ये नाइट में होता है, डार्क, अंधेरे में। ओके, हियर स्टोमेटा का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ये क्लोरोफिल है, ये गार्ड सेल्स हैं, ये स्टोमेटा है। जो पोर दिख रहा है ना, वो स्टोमेटा है। ये रहा स्टोमेटा, ये स्टोमेटल ओपनिंग है, ये गार्ड सेल है। ये यहाँ पे सेल के बारे में यहाँ लिखा था, मैं आपको बताती हूँ। ये रहा सेल का स्ट्रक्चर, जो गार्ड सेल है ना। दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म। यू हैव सीन दैट बिल्डिंग आर मेड ऑफ ब्रिक्स। जैसे आपके बिल्डिंग बने होते हैं, इसमें स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? ब्रिक होती है। ब्रिक इज आल्सो नोन एज ईंट इन हिंदी। Similarly, the bodies of living organisms are made of teeny units called cells. Cells can be seen only under the microscope. इसको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, इसके लिए आपको माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ेगा, और पूरा क्लियर पिक्चर आपको दिखेगा सेल का। Some organisms are made of only one cell. कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिर्फ एक सेल से बने होते हैं। The cell is कुछ होते हैं so many made up of so many cells. The cell is enclosed by a thin outer boundary called the cell membrane. ये देखिए आपके सेल का स्ट्रक्चर है, और ये सेल के बाहर जो मेम्ब्रेन दिख रहा है वो है, it is known as cell membrane. Most cell have a distinct सेंट्रली लोकेटेड स्पेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस। और बीच में जो आपका ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, सेंटर में स्पेरिकल स्ट्रक्चर, इट इज आल्सो नोन एज न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंसेस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। और इसके चारों जो जेली लाइक स्ट्रक्चर, जेली लाइक सब्सटेंस है, इट इज आल्सो नोन एज साइटोप्लाज्म। ओके ओके, तुम कहाँ पे थे? ओके, ड्यूरिंग द प्रोसेस oxygen is released, as you know,
The presence of starch in leaves indicates the occurrence of photosynthesis. जो स्टार्च बना है मीन्स की फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन हुआ है तभी स्टार्च बना है. स्टार्च इज आल्सो ए कार्बोहाइड्रेट. वहां पे मैंने जो फार्मूला दिखाया था वो ग्लूकोज का था. स्टार्च इज आल्सो नोन एज कार्बोहाइड्रेट. देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट. माल्टोज, सुक्रोज, स्टार्च, ग्लूकोज. ग्लूकॉन डी पीते हैं ना, वो भी आल्सो दिस इज आल्सो ए काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट. यहाँ पे दिखा रहा है ना पिक्चर में. लाइट एनर्जी आई सन से, क्लोरोफिल ने कैप्चर किया, क्लोरोफिल ऑफ लीफ ने कैप्चर किया, कार्बन डाइऑक्साइड सराउंडिंग से आया और वाटर एंड मिनरल्स इनके रूट्स के द्वारा आया, रूट्स के थ्रू आया और बदले में क्या निकला, बाद में क्या निकला, ऑक्सीजन रिलीज हुआ. वो शो कर रहा है. डायग्राम शोइंग फोटोसिंथेसिस. ओके. वहां पे एक और क्वेश्चन था, उसका आंसर यहाँ लिखा हुआ है. मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ एक बार. जस्ट ए मिनट. यहाँ पे एक क्वेश्चन है, whether food is made in all parts of a plant or only in certain parts. पूछ रहा है कि क्या आपका ये जो फूड बनता है वो सिर्फ लिप्स में ही बनता है कि कहीं और भी बनता है, वही बता रहा है. जस्ट ए मिनट. Besides leaf, photosynthesis also takes place in other green parts of plant, in green stems and green branches. The desert plants have scale or spine-like leaves to reduce loss of water by transpiration. Leaves के अलावा जो स्टेम ग्रीन कलर के स्टेम्स हैं उसमें भी फोटोसिंथेसिस होती है. जो ग्रीन ब्रांचेज हैं उसमें भी फोटोसिंथेसिस होती है. डिजर्ट प्लांट में क्या होता है, डिजर्ट प्लांट में क्या, जो लिप्स होते हैं वो स्केल लाइक होते हैं, नीडल लाइक होते हैं, ताकि उनके वो जो ट्रांसपिरेशन होता है, इट इज आल्सो नोन एज वाष्पोत्सर्जन, जो उनका पानी का निकलने का प्रोसेस है वो कम हो, इस वजह से उनके जो स्टोमेटा होती हैं वो उसमें इंटरलॉक्ड होती हैं. वो जो स्टेम होते हैं नीडल शेप में उनकी जो लिप्स होती हैं कि उसमें कम से कम पानी का रिडक्शन हो, इसलिए उनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है. वही यहाँ पे लिखा है, द डिजर्ट प्लांट्स हैव स्केल ऑन स्पाइन लाइक लीव्स टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन. दीज प्लांट्स हैव ग्रीन स्टेम्स व्हिच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस. ओके, तो हमने उस क्वेश्चन का आंसर भी ले लिया. ओके. अब यहाँ बूझो का भी कुछ डाउट है. Okay. Bujo has observed some plants with deep red, violet, or brown leaves. He wants to know whether these leaves also carry out photosynthesis. Bujo बोल रहा है कि प्लांट्स, सारे प्लांट्स के लिए ग्रीन थोड़ी ना होते हैं. कुछ प्लांट्स के लीव्स रेड होते हैं, कुछ पर्पल होते हैं. आई विल शो यू अनदर पीपीटी, अनदर पिक which clearly solve your doubt. ये देखिए, यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स दिए गए हैं और उनकी लीव्स अलग अलग कलर के हैं. तो वो बुझो के क्वेश्चन है कि क्या ये अलग अलग कलर की जो लीव्स हैं उनमें भी फोटोसिंथेसिस होती है क्या. ओके. उसका क्वेश्चन वहीं पे दिया हुआ है आंसर. उसके लिए एक्टिविटी 1.1 करके दिखाया है. ओके. उसमें क्या किया, इसने 2 प्लांट्स लिए हैं और उन प्लांट्स को सन में रखा. उसके बाद उसमें से एक प्लांट को 72 आवर्स के लिए उसने शैडो में ले गया, उसको डार्क प्लेस में ले गया. Take 2 potted plants of the same kind. Keep one in the dark or in a black box for 72 hours. तो जब जो डार्क में रखा उसको तो सनलाइट मिला नहीं, फिर क्या हुआ देखते हैं. एंड द अदर इन सनलाइट, और जो दूसरा था उसको सनलाइट में रखा. फिर क्या किया, परफॉर्म आयोडीन टेस्ट. आयोडीन टेस्ट आपने किया था ना 6th स्टैंडर्ड में के लिए चैप्टर 2 में किया है.
व्हाट इज आयोडीन टेस्ट? आयोडीन टेस्ट में क्या होता है? टिंचर आयोडीन लेते हैं. टिंचर आयोडीन इज ए solution in which 2 to 5% of iodine soluble in alcohol, which is called which is called tincture iodine, जिससे हम स्टार्च का टेस्ट करेंगे. Perform iodine test with the leaf of both the plants as you did in class 6. Record your result. Now leave the pot which was earlier kept in the dark in the sunlight for 3 to 4 days and perform the iodine test again on this leaf. Record your observation in your notebook. क्योंकि मैं आपको दिखाती हूँ पिक्चर. जस्ट अ मिनट. वो क्या होगा, जो अंधेरे में था वो निगेटिव रिजल्ट शो करेगा. उसकी पत्तियां ब्लू ब्लैक कलर की नहीं होंगी, पर्पल नहीं होंगी, वायलेट नहीं होंगी, क्योंकि वो स्टार्च उसमें बना ही नहीं, क्योंकि उसको सनलाइट मिला नहीं. और जो सनलाइट में था वो स्टार्च शो करेगा, वो पॉजिटिव रिजल्ट शो करेगा. ये जो धूप में था जिसको सनलाइट मिली, इट्स शो पॉजिटिव रिजल्ट. एंड जिसे आपने 72 आवर्स के लिए डार्क प्लेस में रखा था, इट्स शो नेगेटिव रिजल्ट. ओके, इट मीन्स कि मतलब सारे पत्तियां किसी भी कलर की लीव्स हो, वो सारे में फोटोसिंथेसिस होगी, बट बशर्ते कि उन्हें सनलाइट मिले. ओके, let's move to another topic. Just a minute. तो आपने क्या देखा? The leaves other than green also have chlorophyll, the large amount of red, brown and other pigment mask of green color. ये दिखा रहा है 1/4 में leaves of various color, जो मैंने ऑलरेडी आपको दिखा चुके हैं. The photosynthesis takes place in these leaves also. Okay, we often see slimy green patches in ponds or stagnant water bodies. आप रुके हुए पानी में या बाथरूम में कभी कभी आप देखते हो ना, स्लीपरी से कुछ हो जाते हैं, वो सब क्या है? एल्गी होते हैं. These are generally formed by the growth of organism called algae. It is also known as शैवाल in हिंदी. इसको शैवाल भी बोलते हैं हिंदी में. There are so many types of algae. Algae can also prepare their own food by photosynthesis. ये भी photosynthesis करती है. Just a minute, I will show you picture. देखिए, there are so many types of algae. This is red algae. It is also known as rhodophyta. This is green algae. This is also known as chlorophyta. This is brown algae, which is also known as sargassum. इसके अलावा भी बहुत टाइप्स के एल्गी होते हैं. There are so many other types of algae. और ये सभी अपना फूड खुद बनाते हैं. These are all autotrophs. Okay. Next subtopic is synthesis of plant food other than carbohydrate. बस कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज या ये स्टार्च ही नहीं बनता है प्लांट में, इसके अलावा भी बहुत चीजें बनती हैं. प्रोटीन, फैट्स आप लेते हो ना खाने में, आपको जो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सब प्लांट से ही तो आखिर हम ऑब्टेन करते हैं. These are used to synthesize other component of food such as protein and fat. But protein are nitrogenous substances. Protein क्या है? Nitrogenous substances है. Just a minute. I highlight this one.
ओके, विच कंटेन नाइट्रोजन, नाइट्रोजनस सब्सटेंस, नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें नाइट्रोजन है, तो प्रोटीन में क्या है, नाइट्रोजन। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन, तो ये प्लांट नाइट्रोजन कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, वो बता रहा है। ये प्लांट्स जो है ना वो सराउंडिंग से नाइट्रोजन डायरेक्ट नहीं लेते हैं। रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अबंडेंस इन गैसेस फॉर्म इन द एयर, हमारे एयर में नाइट्रोजन है अप्रोक्सीमेटली 78% ऑफ नाइट्रोजन। और प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म, पर वो इस फॉर्म में नहीं लेते हैं। soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into a usable form and release it into the soil। तो एक बैक्टीरिया होती है, राइजोबियम बोलते हैं जिसको, वो क्या करती है, वो सराउंडिंग से नाइट्रोजन लेती है जो कि प्लांट नहीं लेता, उस नाइट्रोजन को वो उसके यूजेबल फॉर्म में बनाती है, अमोनिया, जिसे वो लेता है। और वो राइजोबियम जो बैक्टीरिया होती है वो लेग्यूमिनस प्लांट्स के नोड्यूल्स में होती है। लेग्यूमिनस प्लांट्स क्या है, वो दलहनी फसलें जो जिससे आप दाल पल्सेज वगैरह निकलती हैं, उनके रूट्स में वो होती हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। और उनका काम क्या है, वो दे कन्वर्ट atmospheric nitrogen into usable form which is known as ammonia. This bacteria is also known as nitrifying bacteria, sorry, nitrogen fixing bacteria। बाद में चल के हम नाइट्रोजन साइकिल भी पढ़ेंगे, अगले परहैप्स 11 या 12 चैप्टर में है। ओके, जो सॉइल में जो अमोनिया बना के रख दिया, वो क्या, these are absorbed by the plants along with water। Also you might have seen farmers adding fertilizer rich in nitrogen to the soil। इसके अलावा अगर जो लेग्यूमिनस प्लांट नहीं है, फार्मर्स ने दूसरे प्लांट्स लगाए हैं, तो उनको ऊपर से एक्स्ट्रा एडिशन करना पड़ता है, फर्टिलाइजर यूज करना पड़ता है, या मैन्योर यूज करें या तो केमिकल फर्टिलाइजर यूज करें। वैसे तो मैन्योर ही यूज करना चाहिए, विच इज नॉट हार्मफुल। ओके, इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल देयर requirement of nitrogen along with the other constituents। plants can then synthesize protein and vitamin। उसके बाद plants प्रोटीन और विटामिन भी बनाता है, जिसको हम लोग प्लांट के थ्रू हम लोग को भी मिलता है। ओके, नेक्स्ट सब टॉपिक इज अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अभी तो हम लोगों ने ऑटोट्रॉप्स पढ़ा, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा, अब हम लोग हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ने जा रहे हैं। देयर आर सम प्लांट्स व्हिच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। कुछ प्लांट्स होते हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं होते हैं। वो कैसे बनाते हैं खाना, वो कैसे खाना बनाते हैं कि लेते हैं किसी और से, डिपेंड है, पार्शियल पैरासाइट है या पैरासाइट है, वो सब इसमें डिस्कस किया है। दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, वो अपना खाना खुद नहीं बनाते। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे डेराइव न्यूट्रिशन। तो वो फूड कहाँ से लेते हैं, वो सर्वाइव कैसे करते हैं, वो हम लोग देखते हैं। Like humans and animals, such plants depend on the food produced by other plants। They use the heterotrophic mode of nutrition। तो वो प्लांट पे या तो फुल्ली डिपेंडेंट होंगे, ये या तो किसी एनिमल पे होंगे फूड के लिए, फूड के रिक्वायरमेंट के लिए। लुक एट द पिक्चर 1.5। Just a minute। ये 1.5 में एक प्लांट दिया है, कस्कुटा अमरबेल ऑन होस्ट प्लांट। एक होस्ट प्लांट है जिसपे कस्कुटा है, एक पैरासाइट
है जो इसको इट इज आल्सो नोन एज अमरबेल। मैं इसको आगे चल के अभी 2 मिनट में ही आपको इसका अच्छे से पिक दिखाती हूँ और डिस्क्राइब करती हूँ। जस्ट अ मिनट। Do you see a yellow wiry branched structure twining around the stem and branches of a tree? आप देख रहे हैं उसमें ना अभी जो दिखा है कस्कुटा का, उसमें येलो वायर की जैसे ब्रांच निकले हैं, वो सब कस्कुटा है। This is a plant called कस्कुटा अमरबेल. It does not have chlorophyll. इसमें chlorophyll नहीं होता है. It takes ready-made food from the plant on which it is climbing. ये जिस पे चढ़ा रहता है ये climber tree है, क्लाइंबर है जो कि होस्ट से फूड लेता है। द प्लांट विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड होस्ट। जस्ट अ मिनट, आई हाईलाइट। हाँ ओके, तो फिर ये कैसे करता है वो मैं दिखाती हूँ आपको। Cuscuta is called the parasite. Okay, I will show you picture of Cuscuta. This is Cuscuta. It is also known as डोडर प्लांट। इसको डोडर प्लांट भी बोलते हैं। इसके अलावा देयर आर सो मेनी अदर पैरासाइट्स। अनदर वन इज स्ट्रिगा प्लांट। इट इज आल्सो नोन एज विचवीड। इसको विचवीड भी बोलते हैं। ये क्या होता है? ये भी पैरासिटिक प्लांट है और ये कहाँ पाया जाता है? ये अफ्रीका में है, एशिया में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। सवाना एग्रीकल्चर ऑफ अफ्रीका में it is found in savanna agriculture in Africa in abundance। बहुत ज्यादा वहां मिलते हैं। ओके, ये क्या कहते हैं? होस्ट प्लांट से उनके एक स्ट्रक्चर होता है हाउस्टोरियम, जिससे ये उससे न्यूट्रिएंट्स लेते हैं होस्ट प्लांट से, ये पैरासाइट्स। ओके चलिए, Are we and other animals also a kind of parasites? क्या हम पैरासाइट्स हैं? हम पैरासाइट्स नहीं है ना, क्योंकि हम प्लांट्स पे नहीं रहते हैं। हम उसके द्वारा जो प्रोडक्ट बनता है उसको लेते हैं। तो पैरासाइट्स का मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि उनको उस होस्ट पे रहना पड़ता है। ओके, यहाँ पे पहली का एक डाउट है। पहली वांट्स टू नो वेदर मस्किटो, बेड बग्स, lice and leeches that suck our blood are also parasite। बिल्कुल, ये सब भी पैरासाइट्स हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर पे रहते हैं या और हम या किसी एनिमल पे रहते हैं और उनसे उनके ब्लड को सक करते हैं। सो दीज आर नोन एज, दीज आर आल्सो एग्जांपल्स ऑफ पैरासाइट्स। ओके, Have you seen or heard of plants that can eat animals? क्या आपने सुना है कि किसी ऐसे प्लांट्स को जो एनिमल को खा जाए? नहीं ना। चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। These are a few plants which can trap insects and digest them। ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो उसको इंसेक्ट को
ट्रैप करते हैं, उनमें उनके एरोमा, उनकी फ्लावर्स का कलर ऐसा रहता है, उनके एरोमा ऐसी रहती है उनके फ्लावर्स की, उसके द्वारा वो अट्रैक्ट होती हैं इंसेक्ट्स, और वो इंसेक्ट को फिर क्या वो अपने फ्लावर्स को या जो उनके स्पेशल आर्गन्स बने होते हैं उसको वो बंद कर देते हैं और उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। Such plants may be green or of some other color. ये ग्रीन कलर के भी हो सकते हैं और दूसरे भी कलर के होते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन आगे चल के पूछा है कि ये ग्रीन कलर के अगर हैं तो ये फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं करते, अगर फोटोसिंथेसिस करते हैं तो फिर उन्हें खाने की क्यों जरूरत पड़ती है इंसेक्ट को। ओके, फिगर 1.6 में दिखा रहा है, a pitcher like a jug like structure is the modified part of the leaf. ये जो pitcher like structure है वो लीफ का ही मॉडिफाइड पार्ट है। ओके, inside the pitcher there are hair which are directed downwards. When an insect lands in the pitcher, the lid closes and the trapped insect gets entangled into the hair. और जो उनके जो पिक्चर में हेयर्स बने होते हैं और जो इंसेक्ट उसमें जाता है वो इंटेंगल्ड हो जाते हैं, वो फंस जाते हैं उस हेयर में, फिर वो निकल नहीं पाते और वो उसे डाइजेस्ट कर देता है। These insects is digested by the digestive juice. उसके अंदर secreted in the pitcher and its nutrients are absorbed. वो उसको डाइजेस्ट कर देता है और जो इंसेक्ट्स होते हैं उसके न्यूट्रिएंट्स को ये ले लेता है। Such insect eating plants are called insectivorous plants. इसी ऐसे ही टाइप्स के जो प्लांट्स होते हैं these are known as insectivorous plants. Okay, I will show you picture जिससे आप अच्छे से क्लियरली समझ पाओगे। ओके, these are pitcher plants. These are pitcher plants. ये देखिए ये इसका लीड है, दिस इज लीड ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जो ये क्या था, लीफ का ही, लीफ के पार्ट आगे चल के ये पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर बन गया है, क्योंकि ये क्या है, एडाप्टेशन है, वो उनको ऐसा एडाप्ट करना ही पड़ता है क्योंकि उन्हें इंसेक्ट से कुछ चाहिए होता है, और जो चाहिए वो अभी मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि क्यों ये इंसेक्ट खाते हैं, जबकि कुछ पोर्शन आपको इनमें ग्रीन दिख रहा है। जब इंसेक्ट अंदर जाता है तो ये लिड बंद हो जाता है, फिर यहाँ पे इसके अंदर जो जूसी सब्सटेंसेस होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, जिससे वो डाइजेस्ट हो जाता है इंसेक्ट। दिस इज आल्सो ए पिक्चर प्लांट। देयर आर यहाँ पे दो स्पीसीज दिखाया गया है। देयर आर two species of Drosera which is located here. One species, this is Drosera capensis. Okay, these are insectivorous plants. ये क्या है, वीनस फ्लाई ट्रैप। ये देखिए वीनस फ्लाई ट्रैप में ये देखिए ये खुला हुआ है, इसमें एक इंसेक्ट आया और देखिए इंसेक्ट जैसे आया ये पहले ऐसे था और ये बंद हो गया, इसने क्लोज कर दिए। और इसमें क्या करता है, ड्रोसेरा क्या करता है, जैसे इंसेक्ट बैठा धीरे 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 इसको रोल करते जाता है, फिर उसको डाइजेस्ट कर देता है। ओके, क्लियर। यहाँ पे बूझो का एक क्वेश्चन है, Bujo is confused if the pitcher plant is green and carries out photosynthesis, then why does it feed on insects? ये green है तो ये photosynthesis कर सकते हैं ना, तो फिर ये insect क्यों ले रहे हैं? क्या होता है, वो जिस एरिया में वो उगते हैं वहां पे जो सॉइल होती है उसमें डिफिशियंसी होती है नाइट्रोजन की, वो अपने नाइट्रोजन को फुलफिल करने के लिए ही इंसेक्ट लेते हैं, नहीं तो और सब चीजें तो ये खुद बना लेते हैं, पर उनको नाइट्रोजन चाहिए ना, या तो इसीलिए या तो
उनके लिए वहां पे नाइट्रोजन नहीं होता है, इसलिए वहां पे एक एडाप्टेशन होता है और उनको पिक्चर 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 लाइक स्ट्रक्चर में वो कन्वर्ट हो जाता है उनका लीफ, और उन्हें ये करना पड़ता है। ओके, ठीक है। आपका अभी तक मैंने इंसेक्टिवोरस हेटेरोट्रॉप्स में इंसेक्टिवोरस प्लांट्स पढ़ाया। इसी फर्स्ट लेसन का ही पार्ट 2 में मैं अदर सब टॉपिक्स विल बी डिस्कस सच एज सेप्टोट्रॉप्स, सिम्बियोसिस, और आपको एक्सरसाइज भी सॉल्व कराऊंगी और आपको बताऊंगी ये नाइट्रोजन साइकिल कैसे चलता है, उसका थोड़ा सा ही, क्योंकि आगे आपको 11 या 12 चैप्टर में पूरा क्लियर बताएं। ओके, आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हो, और कोई सजेशन हो, कोई सुझाव हो कि मेरा वीडियो और अच्छा बने, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए, और एटलीस्ट आप एक थम्स अप दे दो ताकि मेरा मोटिवेशन हो सके। सब्सक्राइब करिए अगर आपको इफ यू लाइक देन सब्सक्राइब। अगर आपको पसंद है तभी सब्सक्राइब करिए, अगर आपको ज्यादा पसंद है तो प्लीज अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि उन्हें साइंस बोरिंग ना लगे और वो भी एग्जाम अच्छे से समझ सके। मैं ये सारे पहली बूझों के सारे डाउट्स लूंगी, मैंने 6 में भी लिए, और जितना मैंने कवर किया है 6 स्टैंडर्ड के भी सारे मैंने डाउट्स लिए हैं, और एक्सरसाइजेस मैंने सॉल्व किए हैं, और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे मेरे लेटेस्ट वीडियो के। ओके, टिल देन सी यू, बाय।